Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are well and good too. Last video में हमने देखा था speaking test का assessment criteria. Basically हमने last video में linguistic criteria को discuss किया था. Moving on further, this video is going to be a continuation video of the last part. And इस video में हम discuss करने वाले हैं another criteria जो कि है clinical communication criteria. But before that, if you haven't watched the previous video जिसमें हमने linguistic criteria discuss किया है, please watch the video first and you can see the video by clicking on the I button. So let's discuss the clinical communication criteria जो कि बहुत importance रखता है, especially for those who are going to give their exam soon. Personally, based on my experience, मुझे ये वाला criteria बहुत practical लगता है and I believe कि ये वाला criteria जो है linguistic criteria से much easier है and in less time इसमें आप अच्छे से improve कर सकते हो and इस criteria को समझकर आप एक अच्छा score gain कर सकते हो. So without wasting much time, let's discuss the clinical communication criteria. So clinical communication criteria, clinical plus communication. So basically इसमें आपको ऐसे पैरामीटर्स देखने के लिए मिलेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि एक क्लिनिकल सेटिंग में आपको कैसे कम्युनिकेट करना है अदर पेशेंट के साथ या फिर उसके रिलेटिव्स या उसके फैमिली मेंबर्स के साथ. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया इन ओईटी स्पीकिंग टेस्ट. एक अच्छा स्कोर गेन करने में मुझे इसकी इम्पोर्टेंस linguistic criteria से ज़्यादा लगी. And knowing this criteria is not only useful in getting good score in OET but also जब आप बाद में हॉस्पिटल ज्वाइन करेंगे एंड आपको पेशेंट या उसके रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा तो आप ये चीज़ उसमें यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ काइंड ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. तो अच्छे से आप इसको समझो एंड इसको अपने ओईटी स्पीकिंग टेस्ट और अपनी रियल लाइफ में भी प्रैक्टिस में लाओ. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक इन सब हेडिंग्स जो कि इस क्राइटेरिया के अंडर आती हैं एंड लेट्स डिस्कस दैट. वेल देयर आर 5 एस्पेक्ट्स दैट द एग्जामिनर विल लुक एट एंड clinical communication criteria. First one is relationship building. Second is understanding and incorporating patient's perspective. Third is providing structure. Fourth is information gathering. Fifth one is information giving. And each one is scored from 0 to 3, where 3 is the highest marks. Let's understand each aspect one by one and know what OET is expecting from us to perform under these aspects. So first one is relationship building. Relationship building includes, first one is introduction. Second is demonstrating an attentive and respectful attitude. Third one is being non-judgmental. Fourth one is showing empathy. So first one is initiating the interaction properly. Like you have to introduce yourself clearly. आपको greet करना है patient को, introduce करना है and उनको बताना है that why you are there. You have to build a relationship with the patient जहाँ पर patient आपको जाने and you have to gain the trust of the patient. Basically आपने पढ़ाई होगा nursing में to build a therapeutic relationship with the patient. तो वही आपको इस वाले पैरामीटर में करना है. So make sure your introduction should be according to the scenario and you always have to greet the patient. Okay, so let's have a look at some of the examples. Second one is you have to be attentive. You have to listen carefully to the interlocutor what he is saying and also you have to show respect throughout your role play. You should have a respectful attitude. तो इसमें आपको बेसिकली पेशेंट को ध्यान से सुनना है एंड एक अपना पोलाइट वे में एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना है एंड योर वॉइस शुड बी पोलाइट. यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन. कोई भी प्रोसीजर के लिए अगर आपको ऑब्जर्वेशंस लेने के लिए पूछना है या आपको कुछ एग्जामिन करने के लिए पूछना है या आपको पेशेंट से कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आपको पहले परमिशन लेना है. ये शो करता है दैट यू आर रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स राइट्स एंड आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहे हो. आपका एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है. सो लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स. Point 3 is adopting a non-judgmental approach. So in this parameter, you have to be a non-judgmental person. For example, if there is a patient who do smoke cigarettes, like वो बहुत smoking करता है and which can affect his health
or which is affecting his health, but आपको अगर उससे कम्युनिकेट करना है तो आपको उसकी सिचुएशन समझना है, rather than saying that no, you are smoking a lot of cigarettes which will affect your health and which is the reason why you are here in the hospital. Rather than saying to him what is ethically right or wrong, like you have to understand his situation, कि किस सिचुएशन से वो गुजर रहा है कि वो स्मोकिंग कर रहा है, एंड अपनी बात को इस तरीके से बोलना है कि पेशेंट को ये ना लगे दैट यू आर जजिंग हिम. सो यहाँ पर अपने एथिक्स को थोड़ा साइड में रखकर ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेशेंट सिचुएशन एंड बी पोलाइट टू द पेशेंट. इसको और अच्छे से समझने के लिए लेट्स हैव अ लुक इन सम ऑफ द एग्जांपल्स. Next point is showing empathy. So same, you have to understand the patient's situation and you have to put yourself in patient's shoes. आपको इसमें reassure करना है patient को, आपको उनको show करना है that you are understanding what they are going through. So some of the empathetic phrases you can use in your OET speaking test are here. रिलेशनशिप बिल्डिंग में भी हो सकता है आप लोग इन सब चीज़ों को पहले से ही अपनी ओईटी स्पीकिंग में प्रैक्टिस में ला रहे होंगे, बट इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग कॉन्शियस अबाउट इट, लाइक कि आपको ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप कॉन्शियस होके यूज़ करो. यू शुड नो दैट इसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ओईटी में अब आपको सिर्फ लिंग्विस्टिक स्किल्स के बेसिस में ही नहीं बल्कि आपके जो बेड साइड मैनर्स है उसके बेसिस में भी एग्जामिन किया जाता है. सो दिस ऑल कम्स अंडर योर बेड साइड मैनर्स. And as I already said that it is kind of your professional development. Second subheading is understanding and incorporating patient's perspective. इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है that your role play should always be patient centered. क्या पेशेंट के concerns है, क्या उसको problems है, इसमें हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है. इसके अंदर 3 subheadings आती है. First one is exploring the patient concerns and ideas. Second one is picking up the patient's cues. Third one is relating explanations to elicited ideas and patient's concerns. So let's move on to first one, which is exploring the patient concerns, ideas and expectation. So इसमें आपको find out करना है that what are the things which the patient is worried about. Basically you have to encourage the patient to speak so that आपको पता लगे that what are the problems, what are the reasons behind their situation. वो सब आपको जानना है. Now have a look at some of the examples. Second thing is you have to pick up the patient cues, like you have to pick up the things जिसमें आपको लगता है कि patient is a bit uncomfortable या उसको कुछ problem है, वो आपको pick up करनी है from their non-verbal or from their verbal response. You can say like, Mr. Singh, you are looking a bit upset today. May I know the reason? And it shows that you really care about your patient and ये उनको encourage करेगा अपनी problem आपको बताने के लिए. So let's have a look in some of the examples. And the last one is relating explanation to elicitate concerns, ideas and expectations. So जो भी patient ने आपको बताया है आपको अपना response उसके according देना है. Like if the patient is telling you his problem, so rather than worrying about finishing your task, you have to give your response. You have to respond to the patient concerns. जो भी उसकी problem है, जो वो पूछता है आपसे, आपको basically यहाँ पर आपको patient centered approach रखनी है. जो भी patient बोल रहा है उसके according आपको respond करना है, उसको ignore नहीं करना है. And keep in mind one thing, task अगर छूट भी गया तो भी कोई problem नहीं है, but make sure to include all these things in your role play. जितना भी आपने perform किया है उन सब में 2 role plays आपको मिलते हैं, दोनों में बहुत time मिलेगा आपको ये सारे सब points को include करने के लिए. Alright, so the next one is providing structure. इसमें बेसिकली वो आपकी एबिलिटी देखते हैं कि कैसे आप जो एक कंसल्टेशन चल रहा है या फिर आपका रोल प्ले चल रहा है उसको आप कैसे स्ट्रक्चर करते हो, कैसे ऑर्गेनाइज करते हो एंड किस वे में आप उसको एक्सप्लेन करते हो. बेसिकली इसमें आपको अपने रोल प्ले का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, लाइक हाउ विल यू एक्सप्लेन द थिंग्स. उसको ऑर्गेनाइज करना है कि पहले क्या बताओगे, कैसे आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाओगे एंड कैसे एक्सप्लेन करोगे.
So इसके अंडर 3 सब हेडिंग्स है. फर्स्ट वन इज सीक्वेंसिंग द इंटरव्यू लॉजिकली एंड पर्पसफुली. सेकंड इज साइन पोस्टिंग चेंजेस इन टॉपिक. थर्ड वन इज यूजिंग ऑर्गेनाइजिंग टेक्निक्स इन एक्सप्लेनेशंस. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पॉइंट, सीक्वेंसिंग द इंटरव्यू पर्पसफुली एंड लॉजिकली. बेसिकली ये आप अपने 3 मिनट्स प्रिपरेशन टाइम में ऑर्गेनाइज कर सकते हो. लाइक आफ्टर रीडिंग योर क्यू कार्ड you have to make a structure that first what you're gonna do. For example, first you'll start with introduction, then you're gonna ask some questions to the patient, then you're gonna explain the things, उसके बाद summarizing the things. So ये आपको एक structure form करना है after reading your cue card in your 3 minutes preparation time. It should be in a logical way, not be illogical. For example, ऐसे नहीं करना है that first introduction दे दिया, फिर आपने टास्क आगे एक्सप्लेन कर दिया किसी मेडिकल कंडीशन के बारे में, एंड देन एट लास्ट यू आर आस्किंग क्वेश्चंस टू द पेशेंट. ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैरामीटर है एंड आप अपने क्यू कार्ड के टास्क देखकर भी इसको फॉर्म कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज साइन पोस्टिंग चेंजेस इन टॉपिक. सो इसको जानने से पहले देख लेते हैं साइन पोस्टिंग का मतलब क्या है. साइन पोस्टिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग योर रोल प्ले एंड आपने एक टास्क कंप्लीट करा एंड यू आर मूविंग टू अ न्यू टास्क नाउ. सपोज प्रीवियस टास्क था कि आपको पेशेंट से क्वेश्चंस पूछने हैं एंड देन उसका नेक्स्ट टास्क है कि आपको उसके बाद एक्सप्लेनेशन देनी है पेशेंट को रिगार्डिंग हिज मेडिकल कंडीशन. सो what you're gonna do is, when you'll finish asking the questions from the patient, you have to notify the patient that questions वाला जो था वो यहाँ पर finish हो गया है and now you are moving on to the न्यू टॉपिक जिसमें कि आप उसको एक्सप्लेन करने वाले हो उसकी मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड. बेसिकली दिस इज द साइन पोस्टिंग कि आपको नोटिफाई करना है पेशेंट को दैट यू आर मूविंग फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर वन नाउ. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अपने रोल प्ले में. हो सके तो जितना ज्यादा यूज कर सको इसका करो. आप इसका यूज बहुत जगह कर सकते हैं. लाइक पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है कि एक टॉपिक से जब दूसरे टॉपिक में मूव ऑन कर रहे हो तो साइन पोस्टिंग का यूज करो. और व्हाट यू कैन डू इज, आफ्टर गिविंग द इंट्रोडक्शन और आस्किंग द नेम ऑफ द पेशेंट, आप उसको समराइज वे में एक चीज बता सकते हो दैट फर्स्ट आई एम गोना डू दिस, लेटर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट आई एम गोना गिव यू एक्सप्लेनेशंस रिगार्डिंग मेडिकल कंडीशन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट सो दैट उनको भी पता चले दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू और आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, so that he will be in sync with you. So कुछ examples देख लेते हैं. Next one is using organizing techniques in explanation. In this parameter, we have to organize the things जो भी हम पेशेंट को बताने वाले हैं, लाइक कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं. सपोज आपको एक टास्क है, उसमें आपको डिफरेंट छोटे छोटे सब पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस टास्क में आपको सिम्टम्स डिस्कस करने हैं, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन बताना है, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताना है. सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज द थिंग फर्स्ट. आप कैसे उसको सिम्टम्स बताएंगे एंड देन उसके बाद जब आपने सिम्टम्स एक्सप्लेन किए, आस्क फॉर पेशेंट अंडरस्टैंडिंग कि उसको समझ आया या नहीं आया. देन मूविंग ऑन फर्दर टू ट्रीटमेंट ऑप्शंस, फिर वो एक्सप्लेन किया एंड लेटर ऑन आपने प्रिवेंटिव मेजर्स एक्सप्लेन कर दिए. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा. So that's all for this video. बचे हुए जो क्राइटेरिया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. Till then, stay tuned and just let me know in the comment box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Just share your feedbacks with me so that मैं improve कर पाऊँ वीडियोस में. And मिलते हैं नई वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.